Welcome my dear genius friends, welcome to your favorite channel Bodhi T. Friends, today we are going to solve the question paper of social science from Braj assignment, and our question paper number is 3, and today we are going to solve section C. So now let's start. In section C, you have to write 6 questions and each question carries 3 marks. Okay. So once again I repeat that during examination you have to keep in your mind that how long your question must, your answer must be. For example, you have to write the question for 3 marks, so you can write 8 points, okay, and or more, maximum 9 points. If you write larger than this, then there will be scarcity of time. So आपको time manage करना है, and according to your time and according to the weightage of the question, you have to write the answer. Explain the importance of architectural style Gopuram. So first of all, what is Gopuram? तो साउथ इंडिया में जो मंदिरों का जो एंट्रेंस होता है उसको बोलते हैं गोपुरम, और ये बहुत ही मैजेस्टिक बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन कर्नाटका देयर इज अ टेम्पल ऑफ भगवान शिव मुर्डेश्वर, और उसका जो गोपुरम है उसकी हाइट कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है. सो इतना बनाते हैं. जैसे मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, उसमें 4 गोपुरम है एंड दे आर मैजेस्टिक. इतने भव्य है ना कि उसके आगे दुनिया की अच्छी खासी जो मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन मॉन्यूमेंट है, उसकी कोई औकात नहीं, इतना शानदार है. सो गोपुरम मीन्स अ गेटवे ऑफ अ सदर्न इंडियन टेम्पल. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स गेन मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ पांड्य रूलर्स. जो पांड्य रूलर्स थे इन्होंने टेम्पल्स को प्रमोट किया. दे बिल्ट हाई आउटर वॉल्स विद एंट्रेंस गेटवेज दैट आर नोन एज गोपुरम. तो उस समय क्या होता था कि पांड्य रूलर्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पांड्य रूलर्स, ये जो मंदिर था इसके चारों वो जो फोर्टिफाई कर देते, दीवार बना देते थे और एक मैजेस्टिक उसका एंट्रेंस बनाते थे. 2 lower stories of temple are convex shaft and the other 2 stories are aloft to make a pyramidal structure that makes the gopuram strong. And you will be surprised to know कि सदर्न इंडिया में आप जाओगे, आप चाहे तिरुपति बालाजी जाओ, मीनाक्षी मंदिर जाओ, मुर्डेश्वर जाओ, गोपुरम सबका एक जैसा होता है, पिरामिडिकल शेप में ये होता है. It is a special characteristic feature of southern Indian temples. Gopuram of Kachi, Madurai gives us aesthetic pleasure even today when viewed from a distance. As I have told you, कांची का मंदिर है या मीनाक्षी मंदिर, ये तो बहुत ही अद्भुत है. यहाँ का जो गोपुरम है, it is one of the greatest place to visit. Give a short information on the Sun Temple of Konark. This question has been repeated, friends. This question was also asked in section B. So, Sun Temple in Konark was built during the reign of Narsivarman, Narsidev first of Ganga dynasty. It is known as Black Pagoda. Pagoda means temple. So this temple is known as Black Pagoda because this was built from black stones. It is unique in design since it is dedicated to sun god. The whole temple is designed as a chariot with 12 massive wheels drawn by 7 horses. So these 12 massive wheels represent 12 months. These 7 horses represent 7 days of a week. There are many statues of Apsaras, Devdasis and musicians. In terms of sculpture, it stands executively among the tourists. And ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब, उन्होंने ये मंदिर बनाया था. It is also a belief among the people. Give information about prose and poetry in Gujarati language. तो गुजराती लैंग्वेज में प्रोज और पोएट्री के बारे में लिखना है. The heritage of Gujarati literature was made prosperously by literary contribution of Narsi Mehta, Mirabai, Dayaram, Akho, Premchand, Pitam, and others who composed beautiful verses, songs, garba, and narrative poems and chappas.
तो देखिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर एंशियंट राइटर्स, बहुत पुराने राइटर्स। उसमें कौन आएगा? नरसिंह मेहता, मीराबाई। मीराबाई यूज्ड टू राइट इन गुजराती, राजस्थानी एंड हिंदी। दयाराम, अखो, प्रेमचंद, प्रीतम, इन्होंने बहुत सारे गरबाज लिखे, सॉन्ग्स लिखे। आफ्टर दैट द स्कॉलर्स लाइक नर्मद, नवल राम, किशोरलाल मसरूवाला, कन्हैयालाल मुंशी, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत राम, रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी and other enrich the Gujarati literature through their works. These are modern writers. Okay, so दो parts में हम लिख सकते हैं, these are ancient writers and these are modern writers, and they played a vital role in the enriching the Gujarati literature. Explain the process of soil formation and how it is formed. Soil किस तरह से form होती है? तो the uppermost layer of the earth's crust, which is loose, fragmented and useful for plants, is called soil. अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसपे प्लांट्स उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जिसपे हम फार्मिंग करते हैं, which is loose, that is known as soil. Land is formed due to denudation of rocks, जो because of air, wind and water, there is denudation of the rocks and soil is formed. तेज हवा आती है, तेज पानी आता है, तो जो रॉक्स के पार्टिकल होते हैं वो बिखरते जाते हैं और उसके कारण सॉइल बनती है। Denudation takes place on the flat top portion of the rocks due to temperature, rain, snow, air, vegetation and insects. ये क्या है? टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में चेंज आता है तो उसके कारण जो उसके पार्टिकल्स होते हैं अलग होते हैं। रेन के कारण होता है, स्नो के कारण होता है, तेज हवा के कारण होता है। वेजिटेशन, वेजिटेशन यानी रॉक है, उसमें कोई पेड़ उगा है तो उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देगा, फिर उसमें से जो पार्टिकल्स है वो अलग होंगे। दीज एलिमेंट्स ब्रेक द रॉक्स इनटू फाइन ग्रेन्यूल्स एंड द क्रस्ट ऑफ द लैंड इज फॉर्म। ये जो फैक्टर्स हैं इसके कारण जो रॉक है उसके फाइन ग्रेन्यूल्स बनते हैं और उससे बनता है सॉइल। दिस क्रस्ट ऑफ लैंड contains big and small pieces of rocks, stones, mud. This is known as regolith. इस पोर्शन को हम बोलते हैं regolith. Regolith contains only mineral substance. Later on, biotic substance, air and water merge into it, and at last, land is formed out of it. तो ये हमने देखा डेनिडेशन होता है, बराबर। फिर इसके अंदर स्टोन, रॉक्स, ये सब फॉर्म होता है। उसके अंदर ह्यूमस आ जाता है, ह्यूमस हमने इससे पहले देखा था। और उसके बाद हमारी जो लैंड है उसका फॉर्मेशन होता है। A number of factors contribute to its formation and fertility. The most important of them are rocks, climate, plants and animals, local topography and long periods of time. The rocks from which the soils are formed disintegrate and decompose under the process of weathering and erosion. बराबर। जब बहुत when there is flood, there is erosion, soil erosion होता है। जो rocks होते हैं उसमें वो fine granules में convert हो जाते हैं। Slope of the land decides the accumulation of soil. अगर स्लोपी होगा तो soil बहुत जल्दी बनता है। Time provides maturity to the soil. The soil formation of soil is a very slow process. अब ये हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया, बट इट इज नॉट सो इजी। इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। State the type of resources and name the renewable and non-renewable resources. तो फर्स्ट ऑफ यू मस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो रिसोर्सेज हमको दोबारा मिल सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं जो हमको दोबारा नहीं मिल सकते। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, नेमली नेचुरल एंड मैन मेड, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल यानी जो हमको नेचर से मिलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज यानी जो हमने ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, रिन्यूएबल एज आई हैव टोल्ड यू जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
These are renewable resources. Non-renewable मतलब coal, petroleum. और renewable and non-renewable resources. Some resources have the ability to renew themselves in a given period of time. Plants and animals have the natural ability to regenerate themselves. Forests and wildlife are renewable resources. Forest है, wildlife है, ये renewable resources है. आप पेड़ काटोगे after 10 or 15 years, a new plant can grow up. Minerals are non-renewable. Minerals है ये non-renewable है, क्योंकि आपने जमीन में से mineral निकाल दिए, then you cannot use it again. Water, forest, solar, wind and tidal energy are some of the renewable resources. State advantage and disadvantage of liberalization. What is liberalization? तो इंडिया ने 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाए. तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? तो बिफोर दिस हमारे देश में लाइसेंस सिस्टम चलता था, यानी आपको अगर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी हो तो आपको 50 लाइसेंस लाने पड़ते थे. तो इट वाज वेरी टफ. हमारे देश में इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पाती थी. और उसके कारण क्या हुआ कि 1991 व्हेन नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मनमोहन सिंह वाज फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने ये लिबरलाइजेशन का मेथड अपनाया. हमको उस समय ऐसी कंडीशन थी चंद्रशेखर सिंह के समय में व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमने गोल्ड को गिरवी रख के हमने पैसा लाया था, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था देश को चलाने के लिए. इतनी खराब कंडीशन थी हमारी. तो उसके बाद व्हेन नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे उनको ईजी बनाया गया. बहुत से ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें खाली गवर्नमेंट इंडस्ट्री बनती थी, उसके बदले प्राइवेट सेक्टर्स को उसमें एंट्री अलाउ की गई. ओके, दैट प्रोसेस इज नॉन एज लिबरलाइजेशन. तो इन 1991 इंडिया एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन फॉर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट. इट इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी आर एज फॉलोइंग. उसके एडवांटेज क्या हुए? Due to economic globalization, there is a rise in industrial production. Industrial production हमारा बढ़ा है. Exchange reserve quota. मैंने आपको पहले बताया कि एक समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, हमने गोल्ड को गिरवी रखा था और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज लाए थे. फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी. राइज इन एक्सपोर्ट्स, अब हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ गया है. पहले हम लोग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही बाहर एक्सपोर्ट में बेचते थे. डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन या महंगाई वो कम हुई है. इंक्रीज इन कैपेबिलिटी टू फेस कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल. आज जो हमारे जो बिजनेस है वो आज दुनिया में अलग अलग जगह पे हमारे जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये जो इनकी जो कंपनीज है ये पूरे ग्लोबल फैली हुई है. वाई? बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन. पहले कैसा था कि हमारे देश में फॉरेन कंपनी अलाउ नहीं थी तो हम भी बाहर नहीं जा सकते थे. ओके, और डिसएडवांटेज क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हैज बीन एट द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ. तो देखिए, पहले हमारे देश में एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन अब उसके बाद हमने इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दिया तो हमारा एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था वो रुक गया. गवर्नमेंट डेट हैज इंक्रीज, गवर्नमेंट का जो कर्जा है वो बढ़ा है. इनकम इनइक्वालिटी हैज वाइडन. व्हाट इज इनकम इनइक्वालिटी? सोसाइटी में दो क्लास होते हैं, पुअर एंड रिच. एक क्लास है वो रिच होता जाता है और दूसरा क्लास है वो गरीब होता जाता है. तो दैट डिफरेंस हैज वाइडन. ओके, स्टेट द एडवांटेज ऑफ वियरिंग अ हेलमेट. हेलमेट पहनने से क्या फायदा होता है? तो हेलमेट कैन रिड्यूस हेड इंजरीज. सबको हेलमेट पहनना चाहिए. वेयरिंग अ हेलमेट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हेड इंजरीज इन एक्सीडेंट. जब एक्सीडेंट होता है तो गिरते हैं तो हेड इंजरी नहीं होती. हेड में क्या होता है? इट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग. तुम्हारा हेड क्वार्टर है. हमारा ब्रेन हमारे कहाँ रहता है? हेड में रहता है. तो हेड को इंजरी होगी तो इट इज बिकम्स अ लीथल इंजरी. हेलमेट्स कैन रिड्यूस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ब्रेन.
injuries which can protect one's life. A helmet provides protection to the eyes. हेलमेट से कारण आपको जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट है, टेम्परेचर, उससे आपको राहत मिलती है. A full face helmet protects the driver's eyes from dust, wind and high beams lights. आप फुल फेस हेलमेट पहनते हो तो डस्ट से, विंड से और हाई बीम लाइट से आपको प्रोटेक्शन मिलता है. हेलमेट एंश्योर्स बेटर कंट्रोल ऑफ व्हीकल. वेयरिंग ए हेलमेट इंप्रूव्स द ड्राइवर्स कंसंट्रेशन हु कंट्रोल्स हिज ऑन स्पीड बेटर. आपने हेलमेट पहना है तो आपको जो दूसरे जो इंटरफेरेंस है उतना अफेक्ट नहीं करेंगे. जो आजू बाजू का नॉइस है, जो एटमॉस्फेयर, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता है. सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ड्राइविंग एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. Helmet reduce seasonal effects. Helmet provides an extra layer of protection to the head and ears in the cold, hot season. अब जैसे आप ठंडी में आप हेलमेट पहनते हो तो जो कोल्ड विंड है वो आपके कान में नहीं जाता है. यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड. मॉनसून में आप हेलमेट पहनते हो, आपका सर भीगता नहीं है तो आपको उससे भी राहत मिलती है. वेयरिंग ए हेलमेट इज द लॉ. फेलियर टू डू सो इज फाइंड बाय द ट्रैफिक पुलिस. Thus, helmet improves driving record and saves from financial penalties. अब गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार पेनल्टी लगाती है तो उस समय आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. देन यू हैव टू फेस द फाइनेंशियल लॉस. सो बेटर हेलमेट पहनिए. बराबर, हेलमेट पहनने से आपको ही लाभ होने वाला है. सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. No, sorry, here is also an question. Explain the terms ISO and ECO. ISO means Indian Standard of Institutes. In 1947, now since 1986, it is known as BIS, Bureau of Indian Standard. अब उसको हम BIS बोलते हैं, Bureau of Indian Standard. The goods that meet the described standards and quality are allowed to use ISI mark. पहले ISI बोलते थे इसको, अब इसको BIS बोलते हैं. गवर्नमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, क्वालिटी के कुछ लेवल्स होते हैं. जो प्रोडक्ट्स उस लेवल को फॉलो करता है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को, उनको ये IS मार्क्स दिया जाता है. इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा. जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर. It was established in 1947. Its main function is to provide certification for standard according to international standards. Exempli Gracia series of ISO 9000 is given for environment management system by international organization, which is certification of officers and institution having high quality. जैसे ISO 9000 का जो लाइसेंस दिया जाता है, इसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो आप फॉलो करते हो तो जो हायर ऑफिसर्स है वो आपको ये लाइसेंस देते हैं ISO 9000 का. इको इज ए गिवन टू सॉप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकिंग मटेरियल, कलर केमिकल्स, पावर कोटिंग, बैटरी, कॉस्मेटिक्स, गुड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड, लेदर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय ISI प्रेजेंटली कॉल्ड BIS. तो ये किसको किसको दिया जाता है, याद रखना. सॉफ्ट, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, कलरिंग केमिकल्स. इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज. इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज को सिंपल शब्दों में कहेंगे तो प्राइस में बढ़ना यानी महंगाई. द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज लीड टू द डिमांड ऑफ हायर सैलरीज, एंड इफ द डिमांड ऑफ सैलरी इज सेटिस्फाइड द production cost of goods increase in the end, thereby increasing the price again. देखो what is this, let me explain to you. For example, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, अब प्राइस राइज हो गया तो मेरे जो वर्कर्स हैं दे विल डिमांड मोर सैलरी. अब मुझको कंपनी चलाई तो मैं उनकी सैलरी इंक्रीज कर दूंगा. अब मैं उनकी सैलरी अपनी जेब से तो दूंगा नहीं, तो मैं क्या करूँ, मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ा दूंगा. ऐसा मेरे इसी तरह से जितनी भी सारी कंपनीज वो करेंगी, वो अपना प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाएगी. तो मार्केट में जो लेबर है, जो वर्कर्स है, उनके पास पैसा गया, एट द सेम टाइम मनी, उनकी सैलरी इंक्रीज हुई है, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ गई है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की. तो ये जो है विशियस सर्कल ये चलता ही रहता है. ओके, दिस इज इन्फ्लेशन प्राइस राइज.
नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज इट्स अ प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट. हाउ कैन यू से दैट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब सोशल डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल. लोगों की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जब बढ़ाई जाती है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. दिस प्लान एम्स एट इम्प्रूविंग पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड बाय प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज. लोगों को बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पूरी करके उनकी हम लाइफ स्टाइल को, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं. दिस मीन्स इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल, बट दैट इज नॉट इनफ. व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? तो कोई भी कंट्री है उसकी टोटल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जो फिगर हमको मिलता है दैट इज पर कैपिटा इनकम. People's quality of life should also improve along with their living standard. Spread of education will improve people's health, make waste disposal proper, improve health-related condition. The effect of growth will reach the masses, and future generation will benefit from it. तो हम एजुकेशन देंगे तो लोग क्या करेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल, वो हेल्थ के लेके कॉन्शियस होंगे, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर ढंग से होगा और इसी कारण लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगी. ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, प्रायोरिटी ऑफ नेसेसिटीज एंड एस्पायरेशन ऑफ पीपल. एक्सपेंसेस मेटेड आउट टूवर्ड्स एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, स्पोर्ट, कल्चर एक्टिविटीज एंड हेल्थ सर्विस टू इंक्रीज एंड एनहेंस क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ आर एन इन्वेस्टमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. यानी कि अब जब गवर्नमेंट एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, स्पोर्ट ये सब पे इन्वेस्ट करती है तो इससे कारण जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो होता है, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है. दिस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज पीपल्स रिफ्लेक्टिवनेस, स्किल एंड प्रोडक्टिविटी. तो जब उनका लोगों का मेंटल सोशल डेवलपमेंट होता है तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेक्शन डी पूरा होता है. I have tried my best to explain each and everything, and I am sure you like this video very much. Thanks for watching. Have a very nice day.